Hello my dear friends, my name is Ranjeet. Hopefully friends, you all are doing very well. In this video, we will be discussing next one of the latest cue cards, which is from the list of September to December 2024 cue cards list. Must prepare it for your exam. If your exam is in upcoming days, week or month, must prepare it for getting desired band scores. So if you liked, here I'm gonna present a sample answer of next latest cue card. If you liked my sample answer which I am going to present in this cue card, please like my video. Okay, like, share and subscribe to my channel before going, okay, before leaving. So now let's know which cue card it is. Describe a person who likes to read a lot. You are supposed to cover the following cues. First one is who this person is, how you knew him or her, what he or she likes to read, and last cue is and explain why you think he or she likes to read a lot. Now let's quickly read my sample answer. Well, reading is an invaluable activity as it offers countless benefits. Reading is an invaluable, it means essential, necessary, essential, pivotal, okay, vital, crucial, any of these words you can use here. इनमें से कोई भी आप word use कर सकते हो. Okay, so invaluable activity है क्योंकि as it offers, ये ऑफर करती है काउंटलेस, काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे मीन्स बहुत काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं ये ऑफर करती है, इसके होते हैं. आई एम फेमिलियर विद न्यूमरस इंडिविजुअल्स. फेमिलियर हूँ मीन्स मैं जानती हूँ काफ़ी सारे न्यूमरस, ओके, अ लॉट ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स को who love reading immensely means a lot of, okay, a lot, who love reading a lot, immensely या फिर highly, okay, a lot, काफ़ी ज़्यादा, जो रीडिंग को लव करते हैं, लाइक या फिर लव रीडिंग immensely. However, here I'm interested in talking about my close friend गुरकीरत. बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, किस में इंटरेस्टेड हूँ बात करने में किसके बारे में, क्लोज फ्रेंड के बारे में, गुरकीरत, नेमली गुरकीरत. नाउ नेक्स्टली, शी इज़ अ ट्रू बिब्लियोफाइल हुज लव फॉर रीडिंग इज सेकेंड टू नन. She is a true bibliophile. Bibliophile, it means के this word is used for those people who loves reading books, okay, books lover, okay, collecting books, loves collecting books or reading books, most of the time reading books, okay. So books को collect करना, स्पेंड करना टाइम रीड करते हुए, ओके. सो ऐसे पर्सन को बुक्स को लव करना, सो ऐसे पर्सन के लिए वी कैन यूज़ दिस वर्ड फॉर सच काइंड्स ऑफ पीपल. उसका जो लव है रीडिंग के लिए इज सेकेंड टू नन, इट मीन्स के इज़ इनकम्पेरेबल, ओके, मैचलेस, जिसका कोई मैच ही नहीं है. हर एंटायर लिविंग रूम इज़ फिल्ड टू द ब्रिम विद बुक्स ऑफ ऑल काइंड्स. उसका जो एंटायर जो लिविंग रूम है वो किससे फिल्ड है, किससे भरा हुआ है, फुल है, किसके साथ, बुक्स के साथ, ऑफ ऑल काइंड्स, सभी काइंड्स की बुक्स के साथ, ओके. टू द ब्रिम, किनारे तक, इट मीन्स वो भरा हुआ है, फुल है, ओके, उसका लिविंग रूम. नाउ नेक्स्ट, आई हैव नॉन हर सिंस चाइल्डहुड. मैं उसे चाइल्डहुड से जानती हूँ या जानता हूँ. वी आर बॉर्न एंड रेज्ड, या फिर आप ब्रॉड अप बोल सकते हो, पले जन्मे और पले बड़े हुए हैं इन द सेम लोकेलिटी, सेम हमारा होम टाउन है, सेम लोकेलिटी में. एंड स्टडी टुगेदर इन बोथ स्कूल एंड कॉलेज, और इकट्ठे ही पढ़े हैं दोनों में ही, स्कूल में भी और कॉलेज में भी. हर हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माइन. मेरे घर से उसका घर जो है अ स्टोन्स थ्रो अवे. If something is a stone's throw away from something, it means कि something is very near, very close to something. So a stone's throw away, ये idiom है. This is a beautiful idiom to be used. Instead of saying something is very close to something or near or very close कहने की बजाय ये आप idiom use कर सकते हो. So we frequently visit each other for various reasons, या various purposes. So we frequently, हम वेरी ऑफन हम एक दूसरे के घर आते हैं, विजिट करते हैं एक दूसरे का घर, ईच अदर एक दूसरे को विजिट करते हैं फॉर वेरियस, अलग अलग रीजन्स के कारण, ओके, अलग अलग रीजन्स के कारण. नाउ नेक्स्टली, during our school days we would often swap books and spend hours discussing our favorite plots and characters. So during our school days, हमारे स्कूल दिनों के दौरान हम ऑफन एक्सचेंज करते थे, स्वॉप बुक्स एक्सचेंज करना, ओके, बुक्स एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ, और स्पेंड आवर्स, घंटों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे. क्या डिस्कस करते हुए, अपनी जो फेवरेट प्लॉट्स, ओके, स्टोरीज, अपनी प्लॉट्स, ओके. सो और जो करेक्टर्स उनमें होते थे, ओके, उनको
डिस्कस करते हुए, ओके, आवर्स घंटों स्पेंड करते थे डिस्कस करते हुए। हर एंथुजियाज्म वॉज हर एंथुजियाज्म फॉर रीडिंग वॉज ऑलवेज एविडेंट, ऑलवेज उसका जो क्लियर होता था, उसका एविडेंट स्पष्ट होता था, उसका जो एंथुजियाज्म है किसके लिए, रीडिंग के लिए, ओके, वॉज ऑलवेज एविडेंट एंड इट वॉज क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही ये क्लियर था दैट शी वॉज अ रियल, ये बात स्टार्टिंग से ही क्लियर थी कि वो एक क्या था या क्या थी, शी वॉज अ रियल बुकवॉर्म, ओके, जो बुकवॉर्म ऑलवेज लव्स रीडिंग, ओके, पर्सन बुकवॉर्म। सो ऑलवेज ये क्या था, ये एविडेंट था, उसका एंथुजियाज्म तो एवरी टाइम होता था, ओके, रीडिंग के लिए, और ये बात स्टार्टिंग से ही क्लियर थी कि वो एक शी वॉज अ रियल बुकवॉर्म। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मूविंग अहेड, गुरकीरत हैज़ अ वरी टेस्ट इन रीडिंग, उसका वरी टेस्ट, अलग अलग टेस्ट है उसका रीडिंग में। शी एन्जॉयज़ नॉट ओनली हिस्टोरिकल फिक्शन एंड फैंटेसी नॉवेल्स, वो ना केवल हिस्टोरिकल फिक्शन और फैंटेसी नॉवेल्स को वो इन्जॉय करती है, बट ऑल्सो डाइव्स इनटू समथिंग, इट मीन्स के डू समथिंग एनर्जेटिकली, इंथुजियास्टिकली, एक्साइटेडली, वो ऑल्सो एनर्जेटिकली, और एनर्जेटिक है और इंटरेस्टेड है किसमें, मिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर विद इक्वल फर्वर, इक्वल पैशन के साथ, एक इक्वल, ओके, सेम, जो सेम है, सेम पैशन के साथ, ओके, इक्वल फर्वर या फिर इक्वल आप पैशन बोल सकते हैं, इक्वल पैशन के साथ। हर बुक कलेक्शन रिफ्लेक्ट्स हर डाइवर्स इंटरेस्ट्स, उसके अलग अलग इंटरेस्ट्स को रिफ्लेक्ट शो करती है, उसकी जो बुक कलेक्शन है, उसके पास जो उसने कलेक्ट की हुई हैं अलग अलग बुक्स, वो रिफ्लेक्ट करती उसका डाइवर्स, अलग अलग जो उसका काइंड के उसके इंटरेस्ट्स हैं उनको, एंड एंडलेस, जिसका एंड नहीं है, ऐसी उसकी क्यूरियोसिटी को ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं। Since she has a wide array of reading materials, since she has a wide range of, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग काइंड्स की, अलग अलग, ओके, अरे, या फिर आप बोल सकते हो वाइड रेंज ऑफ, ओके, अलग अलग प्रकार का जो रीडिंग मटीरियल्स है उसके पास हैं। आई समटाइम्स बोरो बुक्स फ्रॉम हर, कई बार मैं उससे बुक्स बोरो करती हूँ, जो करता हूँ, फ्रॉम हर दैट पर्टिकुलरली इंटरेस्ट मी, जो पर्टिकुलरली जो मुझे इंटरेस्ट करती हैं, मीन्स जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। दे इन्हांस माई नॉलेज, वो मेरी नॉलेज को, वो बुक्स मेरी जो नॉलेज है उसे भी इन्हांस करती हैं, एंड हेल्प मी, और मेरी हेल्प करती हैं किसमें, रिचार्ज माई बैटरी, मेरी बैटरी रिचार्ज करने में एज वेल। Explaining further, I believe Gurkeet's passion for reading stems from her curiosity and her thirst for knowledge. मुझे लगता है explaining further, आगे explain कर रही हूँ, I believe या फिर I reckon या फिर I feel that, जो उसका passion है, गुरकीरत का passion है for reading के लिए, ये stems from, इसका ये कहाँ से आता है, मीन्स इसका कारण क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी, एंड हर थ्रस्ट, जो उसकी नॉलेज की प्यास है, थ्रस्ट है उसकी नॉलेज गेट करने की, उसकी जो विश है, उसकी डिज़ायर है, उससे आती है, इट मीन्स के ये कारण है, ओके, स्टेम्स फ्रॉम हर क्यूरियोसिटी एंड हर थ्रस्ट फॉर नॉलेज। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, रीडिंग ऑफर्स हर एन एस्केप फ्रॉम डेली ग्रिंड एंड अ वे टू ब्रॉडन हर हॉरिजॉन्स। सो रीडिंग जो है उसे ऑफर करती है, ऑफर्स, ऑलरेडी वी हैव यूज दिस वर्ड, सो अगेन वी कैन यूज, if we will use word again, it will be repetition, it will decrease our marks, okay, so it's better to use provide, gives, okay, so provide करती है, provides या फिर gives आप बोल सकते हो, okay, ये reading उसे क्या provide करती है, एक escape उसका हो जाता है, उसका it means कि उसके जो daily उसे छुटकारा मिल जाता है, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो get rid of, छुटकारा मिल जाता है, ये किससे, उसके जो डेली जो उसका यूजुअल जो काम होता है, एक अब या फिर मोनोटनी बोल सकते हो कि मोनोटनस बोल सकते हो, एक सारता बनी रहती है, उससे छुटकारा मिल जाता है, एंड अवे, सो अवे उसका एक तरीका उसे ये ऑफर करता है, रीडिंग उसे एक प्रोवाइड करता है, एक वे उसको ब्रॉडन हर हॉरिजॉन्स, अपने नॉलेज के दायरे को बढ़ाने का एक वे है। बिसाइड्स, इसके अलावा रीडिंग हेल्प्स हर टू डिस्ट्रेस, रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को भगाने के लिए, ओके, सो ये एक उसे हेल्प करती है टू डिस्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मेंटली और फिजिकली रिलैक्स्ड होने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंड इट्स अ हॉबी, और ये हॉबी है एक, दैट शी फाइंड्स, जो
उसे लगती है बोथ इंजॉयबल, इंजॉय भी करती है, इंजॉयबल भी लगती है, एंड इनरिचिंग, उसे इनरिच करने वाली भी लगती है। इनरिच करने वाली मीन्स के उसको, उसकी नॉलेज को बढ़ाने वाली, उसकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने वाली, ओके, उसे इनरिच करने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।